नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। Ni hao to our viewers in China and konnichiwa to our viewers in Japan. Hamaru Yaku Jambu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. So Pradeep ji, Nepal's burning, red flag for India. भारत का जहाँ तक प्रश्न है, बार बार आरएसएस की तरफ से ये एक क्या कहेंगे, निर्देश तो नहीं कह सकते लेकिन सजेशन, सलाह जरूर आ रही है मोदी जी को कि प्लीज उस तरफ जरा आप कृपा करके देखें and we must do something over there because there's a bit of a problem there as far as Nepal is concerned. So and the Chinese are obviously involved, so you don't want China taking over again as far as Nepal is concerned. There's always a threat also to Prime Minister Modi. Yes. As they say, these events in the neighboring countries also show that a strong leadership that challenges the mights of China and US always have a fate where the US works, or the intelligence agencies of US, especially the CIA and others, they work to see that this government is dislodged, or this leadership is dislodged. So more than everything, there's a threat to Modi's leadership. That is what intelligence agencies say. और शायद इसी वजह से तकरीबन जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे संजय राउत साहब हो गए, बाकी सब लोग हो गए, कई कांग्रेस के भी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो अभी नेपाल में हो रहा है हो सकता है हिंदुस्तान में भी हो जाए, which is very funny, but I don't think anything like that can happen over here. And India is too big. कोई जैसे जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जो अभी नेपाल में हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान में भी हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला. But the fact is, a lot of people are nudging, and including security analysts are nudging Mr. Modi that India must intervene over here. So I hope something can be worked out because this fire shouldn't spread and this chaos shouldn't go on. And you can't have a leadership placed against the will of the people. If you have somebody placed against the will of the people, you have another revolution that comes. So at least the majority of the people of Nepal should approve of a leader. Although already there's disputes within the groups that who should lead Nepal or who should be put in position. So it's not going to be so easy thing. But if you allow people, there's going to be a lot of differences. But then you need to have a system where you elect people. The younger generation of Nepal who are actually leading this agitation have picked somebody called Sushila Karki. Sushila Karki ji की पहली statement आई that I have a very good impression of Mr. Modi. Yes. That's what she says. I hope this works out. और दूसरी चीज क्या है प्रदीप जी कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में साफ हो गया कि इंडिया अलायंस तो तकरीबन अलायंस है नहीं, क्योंकि देयर वाज क्रॉस वोटिंग इवन फ्रॉम मिस्टर पवार्स पार्टी, क्रॉस वोटिंग. भाई जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, दे आर नॉट इन द इंडिया अलायंस एनीमोर. दे सेड इट वेरी वेरी क्लियरली एंड इट मेक्स सेंस फॉर देम टू have some sort of a deal with the BJP. I don't think they want to go to jail again. So Sharad Pawar's party, UBT party, they were defectors from there. Defections from there, right, and cross-voting from there. Let's go straight across to our guests. I think we've got a wonderful panel today. Can we go to our guests, please? And that, of course, is Mr. C.P. Radhakrishnan, the new Vice President, being welcomed by Mr. Modi. We have our old friend Bharat Singh Saab. Bharat Singh Saab, क्या हाल है? नमस्कार. नमस्कार, बढ़िया. जय हिंद सर, जय हिंद. How are you? Dr. Rakesh Prajapati, always a pleasure, sir, having you on the show. Prajapati साहब, नमस्कार. और मैं आपको बता दूं प्रदीप जी, प्रजापति साहब मुझे भेजते रहते हैं. समीर भागे साहब, आपको जय सिया राम. थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस. नमस्कार. नमस्कार. मैं आपको बता रहा हूं प्रजापति साहब के बारे में मैं कुछ बोल रहा था. समीर भागे साहब और भरत सिंह जी, प्रजापति साहब वैसे तो समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार राकेश प्रजापति जी पिछड़े समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, मतलब मैं क्या बताऊं सर, दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. मतलब इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ ऑपोजिशन, एक तो कॉलेज में वो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उसके बावजूद जो समाज सेवा का वो काम कर रहे हैं ना, क्या बात है सर. सर मानना पड़ेगा. प्रजापति साहब, really and truly wonderful. It's an honor to have you on the show. Very frankly. Bakri Saab also is a part of the GST panel, I believe. Yes, he is now. He is a part of the GST panel, and yes, and one of the most wonderful financial minds that we have. भरत सिंह जी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे न जाने कब से, और कांग्रेस मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार कांग्रेस जो है वो लॉयलिस्ट को रिवॉर्ड करेगी,
पुरस्कृत करेगी, उनको इग्नोर नहीं करेगी. बट प्रजापति साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. लेट मी गो स्ट्रेट अक्रॉस टू फर्स्ट भरत सिंह साहब. भरत सिंह साहब, सर ये क्रॉस वोटिंग जो हुई इंडिया अलायंस में, आप आम आदमी पार्टी को तो अलग कर दीजिए, आम आदमी पार्टी तो इंडिया अलायंस के पार्ट नहीं है, लेकिन शरद पवार जी तो है ना, और उद्धव ठाकरे जी भी हैं, तो उन लोगों की तरफ से कैसे क्रॉस वोटिंग होगी सर? सीपी मतलब राधाकृष्णन साहब की के पक्ष में कैसे चला गया वोट? मतलब अजीब लगता है थोड़ा. उनके जो सेकंड प्रेफरेंस वोट और थर्ड प्रेफरेंस वोट जो हैं उधर गए हैं. सर भरत सिंह जी, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्रॉस वोटिंग जो बार बार मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है या भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई, ये जो 15 अवैध वोटर हुए, जो डिस्क्वालीफाई जिसको 15 लोगों को किया गया, वो कौन था, वो कौन थे, बता सकते हैं आप? सर वो लिस्ट के नाम नहीं आए, लेकिन हर एक को ये कह रहा है कि वो यूबीटी और शरद पवार जी की पार्टी से थे. 3 यूबीटी, 4 आम आदमी पार्टी, 2 शरद पवार पार्टी और 2 जेएमएम. नहीं, यही तो मैं बता रहा हूं ना कि अगर भाजपा के लोगों को ये पता होगा कि हम हमारे तरफ से क्रॉस वोटिंग किसी सांसद ने किया है, किसी भी पार्टी का किया है, तो वो सबूत दें, देश के प्रधानमंत्री सबूत दें. और जो इनवैलिड वोट हुआ है 15, वो हमारा हुआ है. हम तो कह रहे हैं कि हमारा इनवैलिड वोट किया है आपने. अच्छा ये बता, भाजपा के सांसदों ने किया क्या इनवैलिड? उनका वोट हुआ है क्या इनवैलिड? ये बता दीजिए मुझे. नहीं सर, उनकी तरफ से कोई नहीं हुआ है. नहीं तो हमारी तरफ से कैसे? आपने हमारा शायद इनवैलिड ट्रेनिंग किया गया नहीं है ना दी होगी. 15 वोट. हमारा 315 जो था पूरा, जो सांसदों का एक समूह था 315 था, वो 315 पूरा है. 300 जो है वोट दिखा रहे हैं आप, और 15 हमारा इनवैलिड किए. तो ये सिर्फ एक मीडिया की तरफ से एक चलाया गया सगुफा है भाजपा के द्वारा, जो कहते हैं ना कि गोदी मीडिया. तो गोदी मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है आजकल, वो बताने के लिए कि देखिए इनके सांसद टूट गए, यूबीटी के टूट गए, शरद पवार जी के टूट गए, ममता बनर्जी के टूट गए, सपा के टूट गए. टूटा उठा कोई नहीं है. टूट फूट तो आपको भरत सिंह डर जी, थी, क्या हुआ है? आपके डॉक्टर पार्टी के अंदर एकनाथ डर थी, शिंदे। इसीलिए तो अमित शाह फोन कर रहे थे समाजवादी के सांसद को. तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि सब लोग राहुल गांधी जी से प्रेरित हुए. राहुल गांधी जी ने कहा कि अपने अंतरात्मा को टटोलो, अंतरात्मा से पूछे वोट दो. तो सब लोग ने अंतरात्मा को पूछ के मोदी जी के यानी राधाकृष्णन को वोट दिए. ये डॉक्टर शिंदे का एक्सप्लेनेशन है. अब कितना सही है मुझे मालूम नहीं. अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया है. भरत सिंह जी, देखिए राहुल गांधी जी से कोई पीड़ित हो या न हो, मगर श्रीकांत शिंदे जी के पिताजी से मुझे लगता है भाजपा भी पीड़ित है और अजित पवार जी भी पीड़ित है. ये दोनों जन पीड़ित है और दिल्ली भी पीड़ित है. रोज जो है रूठ जाते हैं, कभी गांव चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं. तो श्रीकांत शिंदे इस विषय पर ना बोले तो अच्छा है. वो अपना देखे कि कितने रूठे हुए हैं और कितने वो खुद पीड़ित है. नाम्बियार जी कितने पीड़ित है ये आप भी समझते हैं कि उठे सुठे एक महीना बीतता नहीं है कि जो है इनको गांव जाना पड़ता है या तो दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन होता कुछ नहीं है. तो पीड़ित कौन है ये आप भी समझ सकते हैं और महाराष्ट्र की पूरी जनता समझ रही है. सर एक नया सर्वेक्षण आया है भरत सिंह जी, आपके लिए अच्छी खबर है उसमें. इट्स ए वेरी वेल नोन सर्वे एजेंसी, जिसमें ये भी आपको बता दूं, जिसके बोर्ड में राकेश प्रजापति जी सुनने वाली बात है, जिसके बोर्ड में एटलीस्ट 3 भाजपा के लोग हैं, मतलब उस तरफ के लोग हैं. मैं उनको जानता हूं, पर्सनली जानता हूं. भरत सिंह जी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई है, ये कहा गया है. कुछ बोलना चाहेंगे सर इसके बारे में? समीर बागरे सर, सॉरी भरत सिंह जी. देखिए क्या है कि राहुल जी के ग्राफ में कितनी ऊंचाई आई है, ये आप पूरे सोशल मीडिया को अगर आप ये खंगाल लें तो पिछले 6 महीना 1 साल के पहले का स्थिति जो है मोदी जी का देख लीजिए और राहुल जी का देख लीजिए, और आज वो स्थिति देख लीजिए कि राहुल जी कहाँ है. वो देखिएगा तो आसमान पे दिख रहे हैं और मोदी जी जो है वो नीचे दिख रहे हैं. सर वो कंपैरिजन नहीं आया सर, वो कंपैरिजन के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, आप बोल सकते हैं. क्या जी क्या बोले? मैंने कहा वो मैं तुलना नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं. आप नहीं कर, नहीं मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ. आपकी कुछ सीमाएं हो सकती है, आपको मेरी नहीं कोई कह सीमा रहा, नहीं है. मगर देश की जनता ने ये ग्राफ दिखाया, देश की जनता ने ये ग्राफ बताया. सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए भाई, कुछ चैनल नहीं बताएंगे ना आपको. अब वो कैसे बता सकते हैं? अब वो बेचारे परेशान है, उनकी अपनी नौकरी है, तो राजीव जी जाने दीजिए, बेचारों को अपनी नौकरी करने दीजिए, नहीं तो वो भी चली जाएगी. क्योंकि वो पहले हमने कहा है कि वो गोदी मीडिया है,
वो सिर्फ लेकिन वो मेरा सिर्फ मेरा ये वो- कहना है, मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा देता हूँ समीर वागरे जी के लिए भी और डॉक्टर प्रजापति के लिए भी और आपके लिए भी, अगर आप पत्रकार हैं तो आपको नौकरी की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नौकरी करनी है तो कुछ और कर लो यार, सीधी बात बोल रहा हूं मैं आपको। फिर आप नहीं, बहुत फिर आप ये नहीं कह बहुत सकते कि मेरी नौकरी चली जाएगी, कुछ चली जाएगी, तो जाए क्यों क्यों पत्रकार बनेगा यार, कुछ और बन लो बहुत जी। बहुत कम ऐसे साहसी पत्रकार हैं आप जैसे साहसिक पत्रकार ऐसे बहुत कम हैं राजीव भाई, कि जो सही बात और सही चीज को दिखाते हैं, जो किसी से डरते नहीं है। आज जितने साहसी पत्रकार हैं, चाहे रवीश कुमार की बात कर लीजिए, अभिक शर्मा जी की बात कर लीजिए, जितने पत्रकार हैं साहसिक पत्रकार, आज देखिए वो खुद चैनल छोड़ के अपना खुद का जो है वो चैनल शुरू किए है। वो अपनी बातें आज भी वो वही दृढ़ता से, वही मजबूती से वो बात रखते हैं। अगर वो कांग्रेस की गलती है तो कांग्रेस की गलती बताते हैं, अगर भाजपा की गलती है तो भाजपा की गलती बताते हैं। मगर आज की तारीख में सचमुच चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं पत्रकारिता को, वो अपना जो है एक जो विश्वास था जनता का विश्वास था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जनता का विश्वास खोते जा रही है पत्रकारिता। लेट मी गो टू डॉक्टर राकेश प्रजापति। डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब, दो चीजें सामने आती हैं, अभी दो चीजें उत्पन्न होती हैं। नंबर एक क्या है, चलो ट्रम्प साहब का जो मैटर है, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ, 25 अगस्त को हम लोगों ने ये बात कही थी, 24-25 अगस्त को, समीर वागरे साहब को याद होगा कि एज फार एज ट्रम्प टैरिफ्स आर कंसर्न दे गोइंग टू बी सेटल्ड, कुछ होने वाला नहीं है इसमें, बिकॉज अमेरिका का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। एंड फाइनली मिस्टर ट्रम्प इज कम अराउंड, वो भी कह रहे हैं कि भाई भारत से बात करो, ये करो, वो करो, वो करो। फाइनली आई थिंक it is my calculation, and it was my calculation even at that time, that finally the Trump tariffs will settle around 15 to 17%. That's it. That doesn't hurt anybody. But that's neither here nor there. लेकिन दूसरी चीज जो हुई है सर, नेपाल के अंदर जिस प्रकार अभी आग लग रही है, जिस प्रकार हमारे पड़ोस के अंदर आज की तारीख में जो हलचल मची हुई है, हर कोई, जितने भी सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, बाकी सब लोग हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी को कि प्लीज आप जरा इंटरवीन कीजिए नेपाल में, अदरवाइज वील हैव अ प्रॉब्लम। ना यहाँ दूसरी चीज एक और आती है सामने, आई डोंट थिंक भरत सिंह साहब विल लाइक दिस, उनको मौका दूंगा मैं बाद में, जितना मर्जी बोलें इस पे। 1951 में जब इस प्रकार की एजिटेशन हुई थी, समीर वागरे साहब सुनने वाली बात है, उस वक्त के किंग जो थे नेपाल के, उन्होंने नेहरू जी को लिखा था कि भाई आप नेपाल को भारत में सम्मिलित कर लीजिए। पंडित जी ने मना कर दिया था। पंडित जी की अपनी कोई उनके कोई रेस्टोरेंट्स रहे होंगे, मजबूरियां रही होंगी कि चीन नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा, रशिया के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, गॉड ओनली नोस। सो डॉक्टर राकेश प्रजापति, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू नाउ? अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को? सर हमारे नेबरहुड में है, बिल्कुल साथ में, बॉर्डर से लग के नेपाल में बार बार इस किस्म की आगजनी होना, पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अभी नेपाल। प्रजापति साहब कुछ बताएं इसके बारे में जरा प्लीज। जी राजीव जी, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जी, उन पड़ोसी देशों में जितनी सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीमा जो मिलती है वो नेपाल ही देश है। लगभग 1500 किलोमीटर की सीमा मिलती है। इसका बहुत हिस्सा लगभग 600 किलोमीटर का बिहार से, उत्तर प्रदेश से और काफी से होता हुआ मिलता है। लेकिन जिस तरीके के हालात नेपाल में पैदा हुए जी, कि भारत की मीडिया फिर से नहीं दिखाएगा, और जो मोदी मीडिया है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा कि हालात क्यों पैदा हुए। ये हालात वहाँ पर रोजगार की समस्या के कारण हुए हैं, सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है वहाँ पर रोजगार। दूसरा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बड़ा, क्योंकि आपने मुझे मेरा स्टार्टिंग में एक परिचय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि वहाँ पर हिंदुत्व भी वहाँ पर भी हावी है, तो वहाँ पर भी ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं, अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे वहाँ पर, वो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से रहे, जिनकी संख्या लगभग जो है 29% या लगभग 27% बताई जा रही है। लेकिन आज तक नेपाल के अंदर, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए कहा है, उस पीडीए का प्रतिनिधित्व और भागीदारी वहां पर बहुत कम है, ना के बराबर है, और उसी कारण से वहां पर तख्ता पलट इस बार हुआ है। अब तक जितने भी तख्ता पलट होते थे वो राजशाही के खिलाफ होते थे, वहां की राजशाही के खिलाफ हुए।
लेकिन इस बार जो सत्ता पलटी है वो वहां पर बेरोजगारी की समस्या को लेकर के और जो लोकतंत्र में सबको हक और अधिकार मिलने चाहिए उसको लेकर के। दूसरा, आपने जो प्रश्न पूछा बिल्कुल सही बात है। जब हमारा पड़ोसी परेशान होता है, ये व्यवहारिक बात है जी। कि अगर हमारा पड़ोसी परेशान है तो निश्चित रूप से हमारी परेशानियां भी बढ़ेंगी। और आज हमारा एक पड़ोसी परेशान नहीं है, बल्कि तीन तीन प्रमुख पड़ोसी, श्रीलंका में पहले हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में हुआ और आज नेपाल में जिस तरह से हो रहा है, ये चिंता की लकीरें हैं। और मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, डॉक्टर लेकिन प्रजापति बोलनी साहब, पड़ेगी। डॉक्टर प्रजापति ठीक है। साहब, यहाँ कहा जाता कि इंडो नेपाल में जो भी डिसीजन होगा उसमें गोरखनाथ पीठ का बहुत बहुमूल्य कंट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज योगी जी जो मेन है गोरखनाथ पीठ का, उनका नेपाल से अच्छा रिलेशन है। तो जो भी सरकार डिसीजन लेगा वो गोरखनाथ पीठ के साथ उनके सलाह मशूरा लेकर करेंगे। कितना सच्चाई है इसमें? प्रदीप जी, ये केवल गोदी मीडिया की चलाई हुई है। ये उसी गोदी मीडिया की चलाई हुई है जिन्होंने पाकिस्तान के लाहौर को नेस्तनाबूद कर दिया था, ये इस्लामाबाद को खत्म कर दिया था, कराची में पता नहीं क्या क्या हो गया था। ये उस मीडिया की करतूत है केवल। और उस गोदी मीडिया को केवल कुछ करना नहीं है, उसे गोदी मीडिया को, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे, मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ राजीव जी को और आपको कि कम से कम आप सच को दिखाने की हिम्मत रख रहे हैं और सच दिखा रहे हैं। वरना गोदी मीडिया तो आज क्या कर रहा था आपको पता है, ये उसी गोदी मीडिया की वो है। गोदी मीडिया तो ये भी दिखा रहा है कि जो वहां के लोग जो है, हाँ एक दो चार अंधभक्त वहां पर भी हैं, दो चार वहां पर भी हिंदू जी को मानने वाले हैं, वो लोग दिखा रहे हैं कि हाँ मोदी जी आ जाइए, योगी जी आ जाइए। लेकिन वास्तविकता वही है जो मैंने आपको बताई है। वहां तख्ता पलट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर पिछड़ों को, वहां पर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, वहां पर जो पीडी है, उनको कभी भी हक अधिकार नहीं मिला। आप पृथ्वी सर्च कर लीजिए, आप ही सर्च कर लीजिए, वहां पर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, कोई गैर ब्राह्मण, कोई गैर क्षत्रिय, वहां क्षत्रिय को क्षेत्रीय कहते हैं, ठीक है, वहां पर कोई ब्राह्मण और गैर क्षत्रिय आज तक वहां पर प्रधानमंत्री नहीं बना। ये आक्रोश है वहां के लोगों पर। और यही स्थिति भारत के अंदर है, भारत के अंदर भी यही स्थिति है कि यहाँ पर भी कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। एक पिछड़े बने हुए हैं, अपने आप को कहते जरूर पिछड़ा है, लेकिन जितना पिछड़ों का शोषण इनके सरकार में हुआ, इतना पिछड़ों का शोषण कभी भी किसी सरकार में नहीं हुआ, कभी भी किसी सरकार में नहीं हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति इस देश में बने जिन्होंने पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन ला करके, और अर्जुन सिंह जैसे व्यक्ति आए जिन्होंने मंडल कमीशन की दूसरी रिपोर्ट लागू कर करके पिछड़ों को हक अधिकार देने का काम किया। लेकिन वारे वाह, ये हमारे कैसे प्रधानमंत्री जी हैं जो अपने आप को पिछड़ा तो कहते हैं, लेकिन पिछड़ों के लिए एक कोई काम किया हो इन्होंने, एक कोई काम किया हो, बल्कि पिछड़ों के लिए कितने हक अधिकार छीने जा रहे हैं, किस प्रकार से लेटरल एंट्री, एनएफएस, कोलेजियम सिस्टम और जो है ईडब्ल्यूएस के नाम पर, बताइए ईडब्ल्यूएस के नाम पर कितना ठगाई की जा रही है पिछड़ों के साथ। भाई ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी, उसकी फुल फॉर्म यही तो है, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन। तो क्या क्यों किसी एक विशेष सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया जा रहा है? क्या पिछड़ों में गरीब नहीं है? क्या दलितों में गरीब नहीं है? क्या प्रजापति गरीब नहीं है? पाल, कश्यप, नाई, गड़िया, तेली, तमोली, कहार, केवट, मल्ला, राजभर, बिंद, धोबी, कोरी, वाल्मीकि, ये गरीब नहीं है? क्या देश की 3 जातियां गरीब हैं? तो लेटरल एंट्री के नाम पर आप बताइए, लेटरल एंट्री के नाम पर 301 बार, 35 एक बार, 9 एक बार और 30 एक बार, लगभग 400 लोग डायरेक्ट सचिव बना दिए जाते हैं डायरेक्ट इस देश के अंदर। बैठे हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता, बताएं इन 400 में ये अल्पसंख्यक समाज है, एक अल्पसंख्यक नहीं है साहब। प्रवक्ता जी, भाजपा के प्रवक्ता जी समझिए, एक नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। बताइए क्या किया है इस भारतीय जनता पार्टी ने? एनडीए के साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। Right, so we went to Nepal and we came back again to the same subject, प्रजापति साहब फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स। लेकिन प्रजापति साहब ने जो वो काम कर रहे हैं प्रजापति समाज के लिए, कुमार समाज के लिए, वो काबिल तारीफ है सर।
और जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं, वंडरफुल, रियली ट्रूली वंडरफुल, कीप अप द गुड वर्क। समीर बाकरे साहब, two things. I think actually there are three things. Number one, we've just signed an FTA agreement with the European Union, which is fantastic. इसके बावजूद के ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई 100% ज़्यादा लगा दो चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर टैरिफ जो है, उसके बावजूद एक FTA एग्रीमेंट जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट होती है वो साइन होगी यूरोपियन यूनियन के साथ। जॉर्जिया मेलोनी जो है, इटली की प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने भी एश्योर किया है मोदी जी को दैट द इटालियंस विल स्टैंड बाय इंडिया एंड दैट ट्रेड शुड गो अप। आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो हैं वो हिंदुस्तान आए हुए हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। सो इंडिया इज डूइंग वेरी वेरी वेल ओवर देयर। चाइना के साथ जो आपका जो करार हुआ है, 2.5 लाख के करीब वीज़ा जो है वो इशू कर दिए हैं चाइना ने। उसके अलावा हम लोगों ने वीज़ा ऑन अराइवल भी कर दिया है फॉर चाइनीज प्रोफेशनल्स। सो वी मस्ट थैंक मिस्टर ट्रम्प फॉर दैट, कि अपने ही पड़ोस में हम लोगों को मजबूर कर दिया कि भाई किसी तरीके से वी मस्ट वर्क आउट समथिंग ओवर हियर, एंड इट इज वर्कड आउट वेरी वेल। एंड इवन मिस्टर ट्रम्प हैज कम अराउंड एज आई ऑलवेज सेड ही वुड, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या है कि सर वो जेसन मिलर साहब जो हैं, जैसे कि यहीं इसी जगह पर हम लोगों की बातचीत हुई थी, समीर बाकरे साहब, you were there on the show, I remember, when I had said we have appointed a new lobbyist in America called Jason Miller. वो जेसन मिलर साहब जो हैं वो ट्रम्प साहब के एसोसिएट थे ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ही हैज नाउ वर्कड फॉर द लास्ट 10 or 15 days and he has brought about quite a few changes. I hope that change continues. लेकिन सर आप ये बताएं, अभी तो चाइना के साथ दोस्ती शुरू हुई है और नेपाल के अंदर जो चाइना का हाथ है, you can't deny that. We really need to do something here. The RSS is worried. I can tell you from inside. जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रश्न है और हमारे जितने भी सिक्योरिटी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा है मोदी जी को दैट वी मस्ट इंटरवीन ओवर देयर, हमें कुछ ना कुछ वहां पे करना पड़ेगा टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, जैसे हिंदुस्तान पहले कई बार कर चुका है सर। शास्त्री जी के वक्त हम लोगों ने किया, इंदिरा जी के वक्त किया, राजीव गांधी जी के वक्त भी किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम भी किया, नरसिम्हा राव के वक्त भी किया, इस बार भी करना पड़ेगा। सर अब आप बोले, बाकरे साहब प्लीज गो अहेड सर। देखिए राजीव जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि नेपाल में जो स्थिति उभर के आ रही है, अभी वहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन द सिचुएशन, बिकॉज इट्स इन अ chaotic सिचुएशन। आज दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो वी शुड बी कंसर्न एंड मोर कंसर्न व्हेन इट इज इन आवर नेबरहुड। उसके आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं प्रजापति जी को सुन रहा था, तो मेरे लिए तो आश्चर्यकारक लॉजिक है इनके कि वहाँ पर कोई जात को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, इसलिए वो युवकों ने संसद जला दी, होटल जला दिए, ये कर दिया। तो मैं प्रजापति जी से पूछना चाहता हूँ कि फिर बांग्लादेश में कौन सी जात को समर्थन नहीं मिला था कि बांग्लादेश में क्रांति हो गई, वो क्यों नहीं बोल पाते कि फिर बांग्लादेश में क्या हुआ, फिर अफगानिस्तान में तालिबान ने क्यों अपनी सत्ता हाथी आई। तो प्रजापति जी, हर चीज को जात पात में बांटने से समाज की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, और सबसे ज्यादा जो पिछड़े जाति के लिए किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं राजीव जी और प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 घंटे का प्रोग्राम कीजिए कि मोदी जी ने जो समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो शोषित वंचित दलित समाज का व्यक्ति है, उनको क्या फायदा पहुंचा, उनके कितने उद्योजक तैयार हुए, कितनी एम्प्लॉयमेंट तैयार हुई। आज हर जगह रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो। तो ये जो कहना कि जात पात के कारण नेपाल में हुआ है, तो इट इज मतलब अगेन आपको वही जात पात का राजनीति करनी है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने पार्टी का अध्यक्ष किसी मुस्लिम समाज से बना दीजिए, क्यों आपके पार्टी का अध्यक्ष हमेशा यादव परिवार से रहेगा। तो चलिए छोड़िए ये बात को, लेकिन देखिए सर, नेपाल में जो हो रहा है, हो सकता है उसके पीछे देयर इज अ डीप स्टेट, हो सकता है उसके पीछे देयर इज अ चाइना एंगल। एट दिस लेवल सर, व्हाट वी आर सिटिंग एज स्पोक्सपर्सन, और आप जो पत्रकार करके बैठे, तो इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं है, इंटेलिजेंस सरकार के पास है। तो जो भी इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से सरकार डेफिनेटली काम कर रही होगी। और मैं आपको वापस बताना चाहूंगा, हमने ट्रम्प साहब की ट्रेड नीति पे कई बार डिबेट की है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मोदी साहब को क्रिटिसाइज करते आई। पहले तो सीज फायर को लेके उनका कहना था कि ट्रम्प का सुन के इन्होंने सीज फायर किया, तो जब ट्रेड का दाव उल्टा पड़ा तो इन्होंने बोला देखिए मोदी जी के ऊपर ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए। तो एक जो राजनेता होता है जो देश के हित में काम करता है, वो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो अपने देश का लॉन्ग टर्म हित ध्यान में रख के पॉलिटिक्स करता है। तो आज देखिए 2 महीने के अंदर ट्रम्प साहब फिर दोस्ती की बात कर रहे हैं।
और उसके बाद हमने जो चाइना से हमारे संबंध है ट्रेड से रिलेटेड, हमने जो रशिया से हमारे संबंध है, जो ब्रिक्स कंट्री से संबंध है, तो आप मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी क्या आज ये माफी मांगेंगी जो मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि सीज फायर उनके कहने पे किया, वो क्या माफी मांगेंगे कि ट्रेड वॉर चल रही है 50% आप पे लग गया। तो देखिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी जी, ये रिएक्शनरी व्यक्ति है, इनको आज सवेरे कुछ सूझा वो चालू कर देते, 2 दिन बाद कुछ सूझेगा उसमें चालू कर देते। ही इज नॉट अ कंसिस्टेंट पॉलिटिशियन, ही विल नॉट बैक वन इशू। और मैं देख रहा हूँ सर कांग्रेस पार्टी को देख रहा हूँ काफी दिनों से, मैं आपको मेरे मित्र कांग्रेस पार्टी के उनको मैं एक सलाह भी देना चाहता हूँ, हो सकता है दैट इज अनवांटेड एडवाइस, बट देखिए हम लोग 50-60 साल हम विपक्ष में रहे, हम हमारा जमीन पे काम करते रहे, हमने समाज के भलाई के काम किए, हमने समाज के हित में आवाज उठाई। आपको सत्ता नहीं मिल रही है इसलिए आप रोज सत्ता कैसे मिले इसके पीछे आप पड़े हुए, कभी आप ईवीएम का रोना रोते, कभी वोट चोरी का रोना रोते। और मैं तो आप ट्विटर हैंडल खोल के देखिए, इनके कई समर्थक है जिनको एक सो कॉल्ड सेक्युलर मीडिया कहते हैं, वो बोल रहे हैं कि नेपाल जैसी क्रांति हिंदुस्तान में होनी चाहिए। सो ये किस तरह की विचारधारा है, जहां अगर थोड़े से पावर से बाहर गए तो ये जल्दी बचने वाला इनका हाल हो रहा है। और यही मानसिकता है कि जो नक्सलवाद की मानसिकता है कि भैया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए वी हैव टू टेक पावर थ्रू द पावर ऑफ द गन। सो आज ये मानसिकता कहाँ आने, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि क्रांति भारत में होनी चाहिए। बागरे साहब, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का 75th बर्थ एनिवर्सरी पर जिस प्रकार से मोदी साहब ने तारीफ किया कि भागवत साहब का पीरियड हैज बीन द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड इन 100 इयर्स ऑफ आरएसएस, ये एक बहुत बड़ा कमेंट है या प्रेज, आप जो भी कहो, बिकॉज सच्चाई में है आर्टिकल 370 इसी वक्त में हो गया है। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो आरएसएस के एजेंडा में जो भी कुछ था वो मोहन भागवत जी और मोदी जी के इस कार्यशीलता, मोदी जी भी 17 तारीख को 75 इयर्स पूर्ण करेंगे। तो when he says the most transformative period in RSS history, तो how do you see that? आप कैसे व्यू करते हो उसको? तो देखिए मोदी जी ने आज जो परम पूज्य डॉक्टर मोहन जी भागवत जो संघ के सरसंघ चालक है, उनके बारे में कई अखबारों में लेख लिखा है और उन्होंने अपने रीजंस भी बताए उन्होंने ऐसा क्यों बोला। लेकिन मैं आपको वापस कहता हूँ सर, संघ जो है एक गौरवशाली भारत और एक विकसित भारत, स्वदेशी के ऊपर आत्मनिर्भर रहने वाला भारत और व्यक्ति निर्माण की संस्था है। तो आज व्यक्ति निर्माण की संस्था है जो उसका 100 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और यह व्यक्ति निर्माण ने हर समाज के हर क्षेत्र में बहुत बेहतरीन इंसान ट्रेन करके छोड़े। तो वी शुड सैल्यूट द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऑन द 75th बर्थडे ऑफ डॉक्टर मोहन जी भागवत। और डॉक्टर मोहन जी भागवत के टेन्योर में काफी रिवोल्यूशनरी चीजें हुई है, संघ में काफी बदलाव भी आए, विचारधारा का बदलाव नहीं आया लेकिन जो अप्रोच का बदलाव है। आज यंग जनरेशन है, आप मुझे बताइए आज जो हमारे जेनजी है जिसके भरोसे ये लोग चाहते हैं कि कोई क्रांति हो, आज हमारे जेनजी तो हमारे सिविलाइजेशंस को मानते हैं बिकॉज देयर इज अ बिगर रोल ऑफ आरएसएस इन दैट कि हर समाज के हर क्षेत्र में जाके हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय सिविलाइजेशन और उसकी पावर का एक बताना और उसके बारे में युवकों को ज्ञान देना। तो इससे तो युवक हमारे आगे बढ़ रहे हैं, इतने यूनिकॉर्न्स हो रहे। तो सर कैसा है, देखिए कोई भी देश में अगर आपका सिविलाइजेशन और स्पिरिचुअल बेस नहीं रहेगा तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड करके आपको नहीं होता है। देश की प्रगति सिर्फ अगर रोड्स और पोर्ट से करेंगे और हमारा कोई सिविलाइजेशन नहीं रहेगा तो आज अमेरिका की स्थिति है, यूके की स्थिति है, यूरोप की स्थिति है और प्रॉस्पेरिटी में भी लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो जब तक हमारा चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण नहीं होता है तब तक हमारा देश सुदृढ़, समृद्ध और बलशाली और सशक्त नहीं होता है। और ये संघ मानता है और हम लोग सब संघ के इसमें तैयार हुए, हम लोग बचपन से तैयार हुए और देश सेवा में करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि एक इनके संगठन ने पिछले 10 साल में ऐसा कौन सा काम किया जो देश हित में है, ऐसा कौन सा आंदोलन किया, सिर्फ और सिर्फ पावर मिलने के लिए इनके सब आंदोलन होते हैं। देश हित में कौन सा आंदोलन कर रहे हैं? कभी कुछ उन्होंने किया है? रोज ईवीएम का रोना, रोज वोट चोरी का रोना। आप मुझे राहुल गांधी पदयात्रा निकालते, वो भी इलेक्शन के लिए निकालते। अरे भाई कभी समाज के बारे में बात कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा बोलते हैं लेकिन उसमें आपके ऐसे संगठन जुड़ जाते हैं जिनका डूबियस पास रहा है। आपके एडवाइजर योगेंद्र यादव जी होते हैं जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है। तो राहुल गांधी जी
और मैं आपको कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी वाज नोन टू बी अ पार्टी ऑफ गवर्नेंस। आप ये कहाँ आ गए लेफ्टिस्ट के चक्कर में भाई साहब? आप धीरे धीरे पूरे लेफ्टिस्ट हो गए, लेफ्ट से ज्यादा लेफ्टिस्ट आप हो गए। तो आपकी सत्ता आना बहुत मुश्किल है। आप चाहे कुछ भी करें एंड डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टूल। लेकिन समीर बागरे साहब, एक ही राजू जी, एक ही मिनट। अभी राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सोशल मीडिया देखिए, उसके पीडीएफ का सोर्स म्यांमार में पाया गया है। देयर आर सर्टेन ट्विटर हैंडल्स हु हैज प्रूव्ड दैट विद एविडेंस। तो अगर भारतीय व्यक्ति के साथ, भारतीय समाज के साथ आप काम करेंगे तो आपको राजनीतिक सफलता मिलेगी। आप में ना पेशेंस है, ना आप में पराक्रम है, ना मेहनत करने की इच्छा है, ना जनता के बीच में जाके काम करने की इच्छा है, तो आपको नतीजा मिलेगा। लेकिन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ नेशन नाउ वी फेलिसिटेट मोहन भागवत जी ऑन हिज 75th बर्थडे। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। मे यू लिव एट लीस्ट अप टू 100 एंड मे यू कंटिन्यू इन दिस मैनर। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कैन विश फॉर, व्हिच इज रियली ट्रूली वंडरफुल। तो भरत सिंह जी, आप ये बताएं कि जहां तक आपका सवाल है और राहुल गांधी जी का सवाल है, जब ट्रंप साहब ने कहा डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी साहब ने भी कहा आपको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तानी इकोनॉमी डेड है। सर ये क्या मतलब हुआ सर? ही शुडंट हैव सेड दैट। अब ये किनको कौन ब्रीफ कर रहा है सर? आप जयराम रमेश जी और शशि थरूर, वो कौन है अपने दूसरे केसी वेणुगोपाल साहब, उनको बोलिए ना सर के पता थोड़ी बहुत अकल तो ले। हिंदुस्तानी इकोनॉमी डेड कहां से हो गई सर? आज वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। IMF बोलता है वी हैव ग्रोन एट 7.8% और आप बोल रहे हैं डेड इकोनॉमी। यू आर जस्ट इकोइंग व्हाट ट्रंप इज सेइंग। और आज ट्रंप साहब तारीफ कर रहे हैं भारतीय इकोनॉमी की, तो अब आप ट्रंप साहब की बात मानेंगे क्या? भरत सिंह साहब बोलिए प्लीज। आप गाड़ी से चलते हैं राजीव भाई? जी आप गाड़ी से चलते होंगे? मैं सब चीजों से चलता हूं सर, गाड़ी से भी, बस से भी, हवाई जहाज से भी, रेलगाड़ी से भी, और तो और छोड़िए अभी पिछले दिनों में बैलगाड़ी से भी गया था। जी हाँ बोलिए। खाना तो खाते होंगे आप? हाँ जी, नहीं, खाना तो खाते होंगे। कभी कभी खा लेता हूँ सर, जब लोग दे देते हैं तो मैं खा लेता हूँ। थैंक यू। और अगली बार नहीं तो मैं आपको फोन कर लूंगा, आप भिजवा देना सर। अब देखिए, मैं पूछ रहा हूँ जी बोलिए सर। कि पेपर पे ही दिखाना है आपको कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे देश की हो गई है। भाई आज देश की गरीब जनता खाना जो खाती है, जो भाजी लेती है, जो दूध लेता है, जो पेट्रोल लेता है, डीजल लेता है, क्या रेट ले रहा है? क्या स्थिति है देश की जनता की? कुछ पूंजीपतियों को छोड़ के देश की जनता का कितना ग्रोथ बढ़ा है? देश में महंगाई की स्थिति क्या है, ये आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? उसके बाद आप ये कहे छेतरई है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक बात कही जाती है छेतरई, उसके बाद भाजपा अगर छेतरई करती है, सारे लोग अगर ये बोलते हैं कि हम बहुत चौथे नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर पे आ गए, दूसरे पे आ गए, पहले पे आ गए, देश की जनता क्या चाहती वो पूछे आपने कभी? इनकी एक नेता हुआ करती थी राजीव जी, शायद आपने कवर भी किया होगा और आपने सुना भी होगा और वीडियो भी देखा होगा। लोकसभा में उन्होंने एक बयान दिया था कि मनमोहन सिंह जी, देश की जनता ये नहीं जानना चाहती कि जीडीपी क्या होती है, देश की जनता ये जानना चाहती है कि हम देश की जनता का पेट कैसे भरेगा, महंगाई कैसे कम होगी। ये भूल गए क्या आप, या भाजपा के प्रवक्ता ये भूल गए क्या? तो आज देश की जनता ये नहीं सुनना चाहती है कि आप जो है चौथे नंबर पे है कि तीसरे नंबर पे है कि पहले नंबर पे है। देश की जनता ये चाहती है कि उसका पेट कैसे भरेगा, महंगाई कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, ये देश की जनता सुनना चाहती है। ये आपके सवाल का जवाब रहा समीर जी। और दूसरा, आपने कहा कि राहुल जी ने कौन सा ऐसा जो है पद यात्रा कर दिया, कौन सा ऐसा जो है मोर्चा या जो है देश के हित में निकाला। तो देश के हित में ही है समीर भाई, ये देश के हित में है जो वोट चोरी से सरकार बनाए और उसकी हम पोल खोल रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ ऐसे ही नहीं नारा लग रहा है। 65,000 लोगों का, 65 लाख लोगों का आपने नाम काट दिया है। और योगेंद्र यादव की बात करते ना, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि 15 ऐसे लोगों को लेके आइए जिसका नाम कट गया हो और वो जिंदा हो। भाई उसी को तो लेके गए थे ना, दिखाए कि ये जिंदा है और इनका नाम कट गया है। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए, जो आप सरकार चला रहे हैं, चोरी की सरकार चला रहे हैं, उसमें तो आपको शर्म आनी चाहिए। देश की जनता ने आपको चुन के नहीं दिया है, ये भारत का इलेक्शन कमीशन आपको चुन के दिया है। आप जो है देश की जनता से हार चुके थे,
240 सीट जो आई है ना, वो इलेक्शन कमीशन ने आपको दिया है, देश की जनता ने आपको नहीं दिया है। ये राहुल जी ने कहा है, ये राहुल जी ने देश की जनता का, गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, आदिवासियों का, पीड़ितों का, उनका, उनकी आवाज बन के जो है, दलितों का उनकी आवाज बन के आज देश की जनता के सामने लेके आ रहे हैं। जो आपको पेट में दर्द हो रहा है, जो आपको चुभ रहा है, जो आपकी पोल खुल रही है, ये आपको नहीं बर्दाश्त होगा। ये हमने जो है काम किया। आपने कहा ना क्या काम किया देश की जनता के लिए, तो देश की जनता का जो लोग मरे हुए साबित करना चाहते थे, वो जो जिंदा थे, उनको हमने सामने लाके ये कहा कि नहीं ये जिंदा है। भरत सिंह जी, एक भरत सिंह जी, जी। आपने कल के इलेक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट का है, उसी में भी कांग्रेस ने कहा कि वोट चोरी हुआ, वोट चोरी से राधाकृष्णन जी जीत गए, या कांग्रेस का कमेंट था। अब ये बात है कि एसआईआर होना चाहिए, आरएसएस का कहना है आरएसएस एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, और उसके दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है कि ईयर एंड में पूरे देश में एसआईआर होगा। तो अब एसआईआर का विरोध भी कर रहे हो और आप ये भी कंप्लेन कर रहे हो कि नाम कैसे है, नाम निकलना चाहिए, तो दोनों मैच नहीं होता। भरत सिंह जी, न्याय कैसे मिलेगा लोगों को? न्याय जब मिलेगा जब जिंदा व्यक्ति को आप जिंदा बताएंगे। तो एसआईआर से करेगा ना वो? आप एसआईआर का विरोध कर रहे हो बिहार में। नहीं, एसआईआर तो किए थे ना, एसआईआर ही इलेक्शन कमीशन ने जो किया, करने के बाद ये बताया ना कि भरत सिंह जिंदा ही नहीं है, और भरत सिंह तो टेलीविजन पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये तो बताया ना आपको जी। एसआईआर में। ये 15 लोगों को जो कोर्ट में लेके गए वो जिंदा थे ना, जिसके साथ राहुल गांधी ने चाय पिया वो जिंदा थे ना, जिसको आपने मित्र घोषित किया। तो ये घपला है, और ये घपला कैसे है, क्या है, ये तो इसी का तो पोल खोल रहे हैं ना कि आप जो आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे थे राजीव भाई, आप जी। आधार कार्ड को मान रहे थे क्या? जो है इलेक्शन कमीशन मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? मानना पड़ा जी, मानना पड़ा ना, बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह रहे एसआईआर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी का 2 नाम है, 4 नाम है, 4 जगह पे है, तो उसको एक जगह पे होना चाहिए। देश का 140 करोड़ आबादी है कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा कि कितनी हमारी आबादी है। लेकिन आप जो है गलत, फर्जी नाम, फर्जी वोट जोड़ रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जितने वोट जोड़ते हैं वो भाजपा के लिए जोड़ते हैं, और ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये महाराष्ट्र में हुआ है। बहुत जल्दी इसका भी पोल खुलेगा। तो सर ये भी बता दें कि अभी अभी जो इतना बड़ा मराठा एजिटेशन हुआ था, मराठा आंदोलन जो हुआ, मनोज जरंगे पाटिल साहब जो आजाद मैदान में आए, उसके बाद एकदम जीआर इशू कर दिया गया। ये कह दिया गया, सबसे पहले जो खबर आई थी वो ये थी, वो क्या थी कि सब कुनबी मराठा और सब मराठा कुनबी हैं। उसके बाद ये बताया गया नहीं, ऐसा नहीं है। जिन कुनबियों के, जो कुनबी समाज से हैं, उनके जो पुरावे मिलेंगे हैदराबाद की 1836 की गजट में, पुणे और औंध की गजट में, और क्या शोलापुर की, सतारा की गजट में, उन्हीं को माना जाएगा कि ये लोग कुनबी हैं, और सब मराठा कुनबी नहीं है, ये बाद में आया गया। तो ये क्या है सर? इसको मतलब मेरी तरह समझ के थोड़ा बाहर है ये, कि वास्तविकता में मनोज जरंगे पाटिल साहब को कोई नई चीज मिली, या वही चीज जो पहले पास हुई थी वही है, क्या है ये भरत सिंह जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहले पास हुआ था वही है जी, कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक लॉलीपॉप दिया गया है। और दूसरी चीज कि आपने जो जीआर सर्कुलर जारी किया, उसमें आपने ये तो क्लियर किया नहीं कि ये किसके कोटे से गया है। जो आपका कैपिंग है 49.5 मतलब 50% का कैपिंग है, क्या उससे आप ऊपर गए हैं क्या? अगर गए हैं तो उसको फिर आपको पास करवाना पड़ेगा, वो लोकसभा में करवाना पड़ेगा, राज्यसभा में करवाना पड़ेगा, नया जो है आपको जो है कानून लाना पड़ेगा, तब उसके बाद होगा ना। अगर वो नहीं कर रहे हैं और उसका 50% के अंदर अगर आप दे रहे हैं, तो आपने ओबीसी का कोटा मारा है कि वो किसका कोटा मारा है भाई, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये मराठाओं के साथ भी छल है, और जो है ओबीसी समाज के साथ भी छल है। ये छल बहुत जल्दी देश के महाराष्ट्र की जनता के सामने आएगा जी। और डॉक्टर प्रजापति, आप ये बताएं, देखिए साहब, जहां तक मराठा का सवाल है, मराठा आरक्षण का सवाल है, आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार मनोज जरंगे पाटिल साहब ने आंदोलन किया। फटाफट न जाने कितने मराठा जो है मुंबई शहर में आ गए। कई बोलते हैं 55,000, कई लोग बोलते हैं 1 लाख, वगैरह वगैरह वगैरह। सरकार भी प्रेशर में आ गई, बॉम्बे हाईकोर्ट भी प्रेशर में आ गया, क्योंकि हाईकोर्ट के भी आसपास आ गए थे। तो इनफैक्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भाई 2 बजे तक इनको खाली कराइए,
और वगैरह 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 एंड सो ऑन। आई पर्सनली थिंक द गवर्नमेंट केम अंडर प्रेशर, दैट इज माय ओपिनियन। तो मुझे ऐसा लगता है सर, प्रजापति और कुमार समाज को अगर आपको ओबीसी से एससी और एसटी में जाना है तो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा सर। क्या वो मतलब उसकी प्लानिंग हो रही है या नहीं हो रही है? सरकारें तभी बात सुनती हैं जब उनके सामने एक विशाल आंदोलन दिखता है, वरना कोई नहीं सुनता सर। प्रजापति साहब अब आप बोले प्लीज। राजीव जी, ऐसे कार्यक्रम हम पिछले 2 साल से 2 बार कर चुके हैं। मेरठ से एक बार दिल्ली पैदल यात्रा हम लोगों ने की थी सन 2023 में, 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले। उस विधानसभा चुनाव से पहले 2022 में और 2024 में हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक एक यात्रा की थी जो गाड़ियों से थी। और उस यात्रा के बाद दिल्ली में जब हम लोग जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे थे तो उस समय पर प्रजापति समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लाठी चार्ज करने का काम भी दिल्ली में किया गया था। और उसमें मेरी भी चोट आई थी और प्रजापति समाज के सैकड़ों लोगों को चोटें आई थी। ऐसा और भविष्य में आने वाले समय में अभी हम लोगों ने बिहार के अंदर भी एक बहुत बड़ी रैली की थी और अब भविष्य में अभी हम उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि जब लोग सड़कों से बाहर निकलते हैं, जैसा कि नेपाल में हुआ, जैसा कि श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और अभी आप बिहार में जो मराठा में बता रहे हैं, और ऐसा ही गुजरात के अंदर पटेल समाज कर चुका है और ऐसा ही जो है हरियाणा में गुर्जर समाज के लोग कर चुके हैं और ऐसा ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज के लोग कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कुमार समाज भी, प्रजापति समाज भी अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो राजनीति ये वो समाज है जो लड़ना भिड़ना नहीं जानता, जो लड़ाई भड़ाई में विश्वास नहीं करता, जो किसी जो है शांति में विश्वास करता है, अशांति में विश्वास नहीं करता है। इसलिए हम चाह रहे हैं ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बात को सुन ले और सुन करके, क्योंकि ऐसा ना इसलिए हम चाह रहे हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैंने उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस वक्त के राजनाथ सिंह जी हाँ, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। क्यों आए हमारे यहाँ पर? तब वोट चाहिए था इसलिए आए। वोट चाहिए, हम तो चलिए मांगने गए थे उनसे, उन्हें आना नहीं चाहिए था, उन्हें मना कर देना चाहिए था कि हम नहीं दे पाएंगे, हम आपकी मांगों को नहीं मान पाएंगे। क्यों मांगा? हम ये सभी जी से पूछना चाहता हूँ, वो मैं पंपलेट कई बार आपको दिखा चुका हूँ। मैं अभी राजनाथ सिंह जी से दोबारा मिलने वाला हूँ, मैं उनसे पूछूंगा आपकी बात आंखों पे आंखें डाल करके कि आखिर ये बताइए आपने क्यों हमें ये झूठा दिलासा दिया? आपको मना करना चाहिए। तब तो हमने 3 मांगे दी थी, लेकिन आप 4 देने को तैयार हो गए, एक अपनी बढ़ा करके दे रहे थे। आज उनमें से एक भी मानने को तैयार नहीं है। आखिर आपके साथ समस्या रही होगी, लेकिन आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। जब आप बिना मांगे ईडब्ल्यूएस दे सकते हैं तो पिछड़े मोस्ट बैकवर्ड क्लास की इन जातियों को न्याय क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए आप। मैं तो इनके भाजपा के प्रवक्ता कई जो हैं अभी मैं बाकरे साहब हाँ, उसके पहले जो थे शैलेश पांडे जी वगैरह जी प्रजापति साहब आगे बढ़े तो बात लेट मी जस्ट फिनिश विद दिस। प्रजापति साहब, जो राजनाथ सिंह जी ने जो वादा किया था, राजनाथ सिंह जी के साथ आपकी उसके बाद बातचीत हुई होगी, आपने उनको चिट्ठी भी लिखी, काफी कुछ लिखा, तो राजनाथ सिंह जी की तरफ से कोई रिप्लाई आया सर? समीर जी, मैं ये बात समीर जी से करना चाहूंगा जी। आखिर समीर जी आपकी पार्टी में कोई संवेदनाएं हैं या नहीं? मैं समीर जी का नंबर मैं आपसे कहूंगा, समीर जी का भी नंबर मुझे बिल्कुल भेज देते हैं सर, बिल्कुल भेज देते हैं जी। इनसे कोऑर्डिनेशन हो चुके, क्योंकि 2-3 लोगों से इनसे कोऑर्डिनेशन हो चुका है। कोई जवाब नहीं मिलता इनके प्रवक्ताओं द्वारा, ठीक है ना? और उम्मीद करूंगा समीर जी शायद कुछ इसमें रेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन प्रजापति साहब, आपसे मैंने जान करके सवाल इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ पे जहां हमारा ऑफिस है ना, उसके बिल्कुल पास में धारावी है। धारावी इज टिल टुडे कंसिडर्ड द लार्जेस्ट स्लम इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है इसको। लेकिन यहां पर
कुम्हार समाज की बहुत बड़ी प्रेजेंस है यहां पर। पॉटरी का काम वगैरह वगैरह वगैरह, लेदर का काम भी होता है, बहुत कुछ होता है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि सिर्फ धारावी का, सुनने वाली बात है, सिर्फ धारावी का जो एनुअल टर्नओवर है विच इज एनीवेयर बिटवीन 500 मिलियन टू $1 बिलियन, ये कहा जाता है। अब यहां पर क्या है कि अडानी जी उसको रीडेवलप कर रहे हैं। इट इज गोइंग टू बिकम ए ह्यूज बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो वो कुम्हार समाज जो अब खड़ा हुआ है वो कहता है यार हम लोग कहां जाएंगे, क्योंकि आप हमें भेज रहे हैं कहां पे, सॉल्ट पैन लैंड में, आप हमें कहीं और भेज रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। आप कुछ बोलने वाले थे, आप प्रजापति जी बोलिए प्लीज। जी, पहले मैं वो बात पूरी कर दूं जो आपने कही थी। जी बोलिए। मैं अभी 2 महीने पहले राजनाथ सिंह जी से मिला जी। और अपना वही मांग पत्र लेकर के गया, लेकिन कहा उन्होंने मैं विचार करूंगा, लेकिन आज तक 2 महीने, समीर जी अफसोस की बात यह है कि 2 महीने हो गए, आज तक मेरे पास कोई रेस्पॉन्ड वहां से नहीं आया, कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। आप बताइए, अपनी मांग, अपनी कही हुई बातों पर आप लोग स्थिर नहीं रहते, कही हुई बातों पर अपनी लोग स्थिर नहीं रहते। हमने 3 मांगे की थी, समीर जी बता दें, 3 मांगे की थी। पहली मांग ये की थी सर, ये 2009 में कार्यक्रम किया था हमने, तब आपकी सरकार नहीं थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जब भी हमारी केंद्र में सरकार आई थी तो हम आपकी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे, अनुसूचित जाति का लाभ देंगे। दूसरी मांग ये की थी कि प्रत्येक प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन करेंगे। वो मांग आपने कुछ प्रदेशों में मांग कर दी है, कुछ प्रदेशों में आज भी पूरी नहीं हुई है। जैसे मैं जिनमें नहीं पूरी हुई है उनके नाम बता दे रहा हूँ, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, इन राज्यों में छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में आज भी वो मांग पूरी नहीं हुई है। तीसरी हमने ये कहा था कि अगर आप क्लासीफाई कर सके, का खा गा वाला वही क्लासीफाई कर दें, क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो और चौथी मांग की राजनीतिक हिस्सेदारी की, वो बात मैं कई बार आपके चैनल डिबेट के माध्यम से भी उठा चुका हूँ कि 543, समीर जी सुनने की बात है, 543 लोकसभा सीटें हैं। आज तक आपकी पार्टी ने 2014, 2019, 2024 3 चुनाव तो आप जीत चुके लगातार, और पूर्ण बहुमत से जीत रहे। एक टिकट प्रजापति समाज को नहीं दिया है। 750 जिलाध्यक्ष हैं, एक जिलाध्यक्ष नहीं है आपकी प्रजापति समाज का। क्षेत्रीय अध्यक्ष 150 से ज्यादा है आपके, एक प्रजापति नहीं है। 25 प्रदेशों में मुख्यमंत्री है, 21 प्रदेशों में मुख्यमंत्री है, एक प्रजापति को वहां नहीं है। आपका कोई भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें एक कुम्हार नहीं है। आपकी जो प्रदेश कार्यकारिणी है उत्तर प्रदेश की, उसमें एक कुम्हार नहीं है। सर क्या हो रहा है ये? सबका साथ, सबका विश्वास। I hope Samir Bhakre ji, when he sees the documents, will forward them to the requisite authorities, because they've been agitating since 1954, sir. 1954 से agitation चल रही है। प्रदीप जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? प्रजापति साहब, बाढ़ हुआ, प्राइम मिनिस्टर योगी जी एरियल सर्वे किया, यहाँ तक अच्छा था कि आपने पूछा टीम 11 का क्या हो गया, टीम 11 क्या कर रहा है योगी जी का, मगर इस दोनों प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का एरियल सर्वे को आप कह रहे हैं कि फ्लड टूरिज्म, ये फ्लड टूरिज्म करके नया जार्गन आप इस्तेमाल करके इसको रिडिक्यूल कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप एरियल सर्वे कर रहे हैं। ये क्या ठीक है? क्या कॉम्पेंसेशन नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया कॉम्पेंसेशन कितना होगा, सीएम ने भी डिसाइड कॉम्पेंसेशन कितना होगा, मगर इसको आप फ्लड टूरिज्म से जोड़कर इसको रिडिक्यूल कर रहे हैं। प्रजापति साहब। प्रदीप जी देखिए, जहां तक मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहा हूँ, तो अब 17 सितंबर आ रहा है प्रदीप जी, और बड़ी इंपॉर्टेंट डेट आ रही है 17 सितंबर। शायद आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में इस समय अमित शाह वर्सेस योगी जी होने लगा है। ये बात पूरी भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे जो इंजन है ना, इसके इंजन जो है, एक डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, 2.5 इंजन, 3.5 इंजन, पता नहीं कितने इंजन है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन सही तरीके से चल नहीं रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि गृह मंत्री जी को उत्तर प्रदेश के प्रधान जो मुख्यमंत्री हैं वो नमस्ते नहीं करते। अभी राजनाथ सिंह जी एक कार्यक्रम में थे,
और हमारे जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपना प्रिय मित्र बता रहे थे। क्यों प्रिय मित्र बता रहे थे? क्योंकि योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य की बनती नहीं है। फिर अब केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि योगी जी को हटें और मैं जल्दी से मुख्यमंत्री बैठूं। उधर योगी जी चाहते हैं, अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं कि 17 सितंबर के बाद ये क्लियर हो जाएगा। अगर मोदी जी ने जो नियम बनाया है 75 साल वाला, वो 75 साल वाला नियम या तो तोड़ेंगे और नहीं तोड़ेंगे तो भाई देखते हैं क्या होता है। आप भी बात करेंगे टेक एंड बात वही Right, so let me go to Samir Bagre Saab. Samir Bagre Saab, two things here. One, of course, we've already heard the reply on September 17th. Modi ji, of course, is not stepping down. There's no question of that. Number two, जो प्रजापति साहब ने बात करी, जहाँ तक कि कुमार और प्रजापति समाज का प्रश्न है, कुमार और प्रजापति समाज earlier was a scheduled tribe. They used to come under scheduled castes and scheduled tribes in the British Gazette. But suddenly they were pushed into OBCs. Now the problem is they've been agitating. बहुत देर से लोग एजिटेट कर रहे हैं कि भाई आप हमें इसमें वापस लाइए। और यहां पर क्या हुआ, राजनाथ सिंह जी जब प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, रामलीला ग्राउंड में कुमार समाज और प्रजापति समाज का बहुत बड़ा जलसा था और उन्होंने सबके सामने भाषण दिया और सबको अश्योर किया कि जैसी बीजेपी की सरकार आएगी वी विल पुट देम अगेन इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। तो समीर बागरे साहब, आपको लगता नहीं कि बीजेपी के अध्यक्ष जी ने अगर कुछ वादा किया है तो उसको पूरा करना चाहिए? बागरे साहब, अब आप बताएं प्लीज। देखिए राजीव जी, प्रजापति जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन है अगर वो मेरे तक पहुंचाने की व्यवस्था करे। देखिए आज मैं वो इशू को लेके मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि उन्होंने एंड राजनाथ सिंह जी ने क्या भाषण दिया था। So without looking at that thing, it will not be proper for me to comment. I agree. So we'll send that. अब बात करें सितंबर 17 को लेकर के, और जो बात इन्होंने कही है योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, ऐसा कुछ है क्या सर? समीर बागरे जी। सर हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता, ये आइडियोलॉजी होती है और एक जो कार्यकर्ताओं की भावना होती है। यहाँ देखिए प्रजापति जी के पार्टी में तो चाचा भतीजा की नहीं बनती है। सत्ता के लिए चाचा भतीजा लड़ गए थे, मतलब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के रहते हुए अखिलेश जी ने उनके खिलाफ कुछ कदम लिए थे। तो यहाँ देखिए प्रजापति जी और भरत सिंह जी से मैं बोलना चाहूंगा कि ये पार्टी हमारी कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि जो परिवार में जन्म हुआ यानी आपको राज करने का अधिकार मिल गया। और मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र जी, ये सब हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स है और इनकी एक जर्नी रही है। ये इन्होंने शुरुआत बूथ वर्कर से की और यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कोई परिवार में जन्म हुआ इसलिए डायरेक्ट उसका अध्यक्ष बना गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये जो कह रहे हैं कि अमित शाह जी की योगी जी से बनती थी, अरे भाई आपको उन्होंने आके बताया क्या कि हम लोगों की बनती नहीं है, वो हाथ नहीं मिलाते। अभी योगी अमित शाह जी लखनऊ में थे, इतने बढ़िया तरीके से दोनों का मिलाप हुआ था। तो ये देखिए कुछ भी बात करना और कुछ भी करना, वी आर हियर फॉर नेशन बिल्डिंग, समाज सुधारने के लिए, आइडियोलॉजी के लिए, सिविलाइजेशन के लिए। ये क्या है कि इसकी नहीं बनती। आज मुझे बताइए, इतने साल आपने भाजपा और जनसंघ को देखा है, मुझे एक इंस्टेंस बताइए कि जब पार्टी हमारी सत्ता में नहीं थी और सत्ता के लिए हमारी पार्टी कभी टूटी है क्या? और मैं कांग्रेस की तो मतलब ऑलमोस्ट 500 ब्रेकअप्स हो गए अभी तक कि सत्ता के लिए ये घड़ा छोड़ के जा रहा, वो घड़ा छोड़ के जा रहा। आज स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के पार्टी में सत्ता का संघर्ष परिवार में चल रहा है। तो देखिए आप ये हमारे से इन पार्टियों को कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर बाउंड बाय आइडियोलॉजी, वी आर बाउंड बाय नेशन बिल्डिंग, वी आर नॉट फॉर पावर। हम लोग समाज सुधार के लिए इसमें आए, कोई पावर के लिए नहीं आए सर। बाकरे साहब, 3 फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर दैट इज रावत, लवासा और कुरैशी जी, तीनों ने कहा कि जो ज्ञानेश कुमार जी ने राहुल गांधी के बर्ताव जो था वो ठीक नहीं था। इफ दे वर देयर दे सेड दैट विदाउट एफिडेविट के मांग नहीं करते, एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनका क्वेरी इनवाइट करते और उस क्वेरी का सॉल्यूशन देने का कोशिश करते। व्हाट तो इनडायरेक्टली तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे बोले ज्ञानेश्वर कुमार जी का जो रवैया वो ठीक नहीं था। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप ही हैज टू बी मोर पैरोकियल, ही हैज टू एक्सेप्ट and has to
convince the people of India कि election commission is not biased. How do you see that? 3 election commission के जो commissioners के जो reactions. देखिए, वो जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर के आपने नाम लिए, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और लीनिंग्स क्या है ये आप और हम सबको पता है. दे आर ऑलवेज बीन प्रो कांग्रेस एंड दे हैव बीन प्रो कांग्रेस इन देयर एंटायर करियर. लीव अपार्ट दैट, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एक जिम्मेदार पद पे, लीडर ऑफ अपोजिशन पद पे बैठे हैं. वो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को धमकाते हैं कि आज इनकी सरकार है, कल हमारी सरकार आएगी, तब हम आपको देख लेंगे. तो किस तरह की ये भाषा है, किस तरह का थ्रेट है? और अगर आपको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने ऑफिशियल कंप्लेंट की क्या? आज मेरे मित्र भरत सिंह जी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में है, तो 24 दिसंबर 2024 को जो इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया है 60 पेज का, उसके बारे में क्या हुआ? तो देखिए, शूट एंड स्कूट, मतलब आरोप करके भाग जाना, और ना ये कभी ऑफिशियल कंप्लेंट करते हैं, ना कभी कोर्ट में जाते, और कोर्ट में जाने के बाद जब इनको कोर्ट सुनाता है और कई बार माफी मांगनी पड़ती है राहुल गांधी को. सो देखिए, ये 3 इलेक्शन कमिश्नर क्या कह रहे, क्या नहीं कह रहे. एंड इफ राहुल गांधी हैज टू बी कन्विंस्ड फॉर अ ट्रूथ, I don't think it is the job of the election commission to convince Mr. Rahul Gandhi. समीर भाग्य साहब, मैं आए सर प्लीज. ऐसा है, ज्ञानेश कुमार जी जो हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो हैं, उनका रवैया बड़ा आक्रामक है सर. प्रॉब्लम ये है, what the 3 election commissioners were saying was, why is he being so aggressive? ठीक है, देखिए साहब, पॉलिटिक्स में क्या होता है, he is a bureaucrat. पॉलिटिक्स में क्या होता है कि सर पीपल आर वेरी अजीबोगरीब, कभी कभी भाषा का इस्तेमाल होता है. बीजेपी की तरफ से भी होता है, समाजवादी की तरफ से होता है, कांग्रेस की तरफ से होता है. हाल ही में डीएमके ने भी बहुत अजीबोगरीब शब्दों का इस्तेमाल किया. ऐसा होता है सर. बट परहैप्स इफ ज्ञानेश कुमार जी, नॉट ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश कुमार जी had perhaps been more accommodating, and perhaps if he had smiled a little bit more, the effect would have been different. मतलब सर, मुस्कुराने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, तो कर सकते थे. वो इतने आक्रामक तरीके से बोल रहे हैं, मतलब क्या जरूरत पड़ी सर? आई हैव नेवर सीन, लाइक अनलेस एंड अनटिल ही हैज बीन टेरिबली प्रोवोक्ड. फॉर एग्जांपल, अखिलेश यादव जी जो हैं, या हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अगर आप मोदी जी को बहुत प्रोवोक करेंगे तो जाकर के, वो भी वेरी रेयर ओकेजन्स, ऑन वेरी वेरी रेयर ओकेजन मैंने देखा है मोदी जी को गुस्सा करते हो, लेकिन हमेशा ही ऑलवेज गॉट अ स्माइल. ही विल ऑलवेज जोक अबाउट समथिंग और द अदर. सो वाज द केस विद मुलायम सिंह यादव जी. ये सब लोग ऐसे थे. तो एक ज्ञानेश कुमार जी को, मतलब मुझे लगता है कि ही शुड नॉट बी सो सेंसिटिव, ही शुड नॉट हैव सच अ थिन स्किन. लेट्स बी वेरी क्लियर. सर, अब क्या है कि लोगों को अगर लगता है, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी को लगता है कि यार वोट चोरी हुई है, उनको ब्रीफ कर दिया गया कि हम लोग तो जीते हुए थे, हम असल में हार गए, हम तो जीते हुए थे. सर, अगर ऐसी बात है तो perhaps the election commission can call him and explain to him, यार देखो ये प्रोसीजर होता है, आप इस प्रोसीजर से चलें. मैं मानता हूं आपकी बात. फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, हम दोनों महाराष्ट्र से हैं, तीनों लोग महाराष्ट्र से. प्रजापति साहब, सुनने वाली बात है, वहां पर जो कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट थे सर, जहां जिन सीट्स के ऊपर लेकर के अभी वो चिल्ला रहे हैं, सर दे weren't even there. Let me tell you this. 5 बजे साइन करके चले गए, पूरी वोटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, तब भी चले गए. मेरा ये कहना है कि आपने किस पोलिंग बूथ के ऊपर कंप्लेंट करी, कहां पर आपने जाकर के एफिडेविट दिया, कहां पे आपने जाकर के इलेक्शन कमीशन को विद प्रोसीजर ये बताया, जैसे समाजवादी पार्टी ने किया. फॉर एग्जांपल, समाजवादी पार्टी हैज कंप्लेंट अबाउट 17,800 टाइम्स. वैसा आप क्यों नहीं कर सकते? सो the Congress needs to be told, hey listen, we are a country of laws, we need to do this. So Sameer Bhagre sahab, that is my only contention. Perhaps Gyanesh Kumar ji could be more how shall I put it, perhaps he should approach this with a bigger sense of humor. Pradeep ji. And अब फिलहाल मोदी जी मणिपुर जा रहा है, he is going to Manipur. बार डॉक्टर प्रजापति साहब अलग अलग मंच पर यहाँ पर बोले थे कि मणिपुर कब जाएंगे बाकरे साहब, बट अभी जा रहा तो भी आंकड़ा दे रहे 360 चर्चेस डैमेज हो चुके, 7,000 घर तबाह हो गया, 40,000 लोग डिस्प्लेस हो गए. मोदी जी को वक्त लगा, देर हो गए वहां पहुंचने के लिए. हाउ डू यू सी दैट कमेंट, बाकरे साहब? देखिए, पहले तो मैं राजीव जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है एक संवैधानिक संस्था है. आप रोज उसके ऊपर छींटे कसेंगे या उसकी बदनामी करेंगे,
और लोगों के नजर में आप क्रेडिबिलिटी उनकी कम करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्शन कमिश्नर ने एक बार अगर जवाब दिया, आप राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज और उनका फेस देखिए, हमेशा गुस्से में, हमेशा गाली गलौज के इसमें रहते हैं। तो अगर राजीव जी देखिए, इलेक्शन कमिश्नर कोई बेबी सिटिंग नहीं करेंगे राहुल गांधी का कि भाई आप आइए हम आपको ये करेंगे। उनको कई बार कांग्रेस पार्टी को But sir, he has a cabinet post. He is not an ordinary person, no, sir. Sir, let me has a- complete. Let हाँ, me बोलिए, complete. हाँ, बोलिए, Congress Sir, party, please. Congress party has been given sufficient opportunities on a number of occasions through representations, through personal meetings, through everything. राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना। आप रोज सुप्रीम कोर्ट को गाली देके देखिए, फिर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस करना है कि नहीं करना है। और इलेक्शन कमिश्नर ने एक बार क्या आपके बारे में बोल दिया कि आप प्रूफ We दे have दीजिए, experienced गलत this. क्या बोला है राजीव जी? अगर प्रूफ मांगा है तो गलत क्या बोला है? जी। और एफिडेविट पे प्रूफ मांगा है, क्योंकि अपन ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं कर रहे, वेदर ही इज टॉकिंग समथिंग आउट ऑफ द लॉ, और आप उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी अगर कोई चीज समझ नहीं रहे तो इट इज द ड्यूटी ऑफ हिज मदर एंड हिज पार्टी That's टू गेट हिम कन्विंस्ड। वी आर नॉट हियर, नॉर द इलेक्शन कमिश्नर इज हियर। वो संवैधानिक पद पे है तो उसकी गरिमा रखना चाहिए, ना कि कोई भी एक स्ट्रीट। हाँ, जैसे प्रदीप जी कई बार बोल चुके हैं, जैसे प्रदीप जी कई बार बोल चुके हैं, कोट कर चुके हैं देवेंद्र फडणवीस जी को। देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा था कि भैया मैं मुख्यमंत्री हूँ महाराष्ट्र का, अगर मुझे भी इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा तो मुझे एफिडेविट तो देना पड़ेगा ना भाई। जस्ट बिकॉज आई एम सीएम डज नॉट मीन दैट माय वर्ड हैज टू बी टेकन एट फेस और वैल्यू। हमने विधानसभा में ओथ लिया, उसका मतलब थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं फाइल करना है। फाइल तो करना पड़ेगा ना, एफिडेविट तो देना पड़ेगा सर। some procedure has to be gone through. But all I am saying is I agree with you that Rahul Gandhi is perhaps Rahul Gandhi, okay fine, he should at least learn something from Akhilesh Yadav. Let's be very clear. Akhilesh Yadav जी तो उनके एसोसिएट हैं यार, उन्हीं से सीख लो। सर अखिलेश यादव की शक्ल से कभी मुस्कान हटती नहीं है। सबसे सीरियस बात भी जो होती है वो हंसते हंसते बोल देते हैं। So that's brilliant. I mean maybe he should learn something from them. And That's all Rahul I'm Gandhi saying. himself doesn't have to file an affidavit. उनके जनरल जयराम रमेश जाके affidavit can file कर सकते हैं। Anybody can file. और उनके जनरल सेक्रेटरीज जाके फाइल कर सकते हैं affidavit. It's That's not right. required that Rahul Gandhi goes and file. So you want to speak on Manipur before you go to? No, one second. Well, I would like to show that. Sameer Bagre Sahab, that is a poster which was brought out by the Prajapati Samaj, which is on screen right now. We'll have it sent to you. प्रजापति समाज जब मिला था राजनाथ सिंह जी को रामलीला ग्राउंड पर, तो ये पोस्टर है और उसकी जो फुटेज है वो भी शायद आपके पास आ जाएगी। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर। जी प्रदीप जी आप पूछिए you want to speak on the Manipur issue जो उन्होंने कांग्रेस अभी आलोचना जारी किया है कि 360 चर्च जलाए गए, 7,000 घर तबाह हो गया, 40,000 लोग डिस्प्लेस हो गए, उसके बाद मोदी जी जाकर वहां पहुंच रहे। बोलिए बाकरे साहब। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो भी मणिपुर के बारे में उनका ये था, मणिपुर में शांति हो इसके लिए कभी वो नहीं बोलते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए, ये क्यों नहीं गए? भाई साहब, वहां पर चुनी हुई सरकार थी, देयर वेर फाइट बिटवीन टू कम्युनिटीज, वो कुछ मंत्रियों के घर जलाए गए, उसके बाद चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगाया, उसके बाद सीआरपीएफ आर्मी सब लगी हुई है। नाउ द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। सो देश में कोई भी प्रदेश में अगर वहां पर अशांति होती है तो ये हमारे सबका कंसर्न है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पर्सनल चीजें करना कि नहीं, ये क्यों नहीं गए, क्यों नहीं। अरे भाई साहब, गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड जो भी उनके अंग रहते हैं। तो अगर आर्मी कुछ काम कर रही है और आज हमारे यहाँ मणिपुर में शांति हुई, अगर दो समाज में शांति हुई, देखिए कोई भी समाज के धर्मस्थल हो, चाहे लोगों की जान जाए, चाहे कुछ भी हो, अगर ये होता है तो सभी को दुख होना चाहिए। इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि कितने मतलब कोई धर्मस्थल जले। हमें ये कंसर्न है कि हमारे भारत देश के नागरिकों का नुकसान हुआ है। तो आज भारत सरकार ने अगर वहां स्थिति कंट्रोल में लाई है, सो वी शुड बी हैप्पी। एंड पीएम मोदी जी इज गोइंग देयर टू इनॉग्रेट सर्टेन प्रोजेक्ट्स एंड कुछ डेवलपमेंट की बात हो रही है। जो लोगों को क्षति हुई है, वायलेंस से क्षति हुई है, डिस्प्लेस हुए हैं, उनके जख्मों पे मरहम लगाने जा रहे हैं, उनकी संवेदना से चीजें सुनेंगे। तो मुझे ऐसा कहना है प्रदीप जी की हर चीज, अगर कोई अशांति हो रही है तो देश में हम उसको पॉलिटिक्स के नजर से क्यों देखना चाहते हैं। अगर गढ़चिरौली में नक्सलवाद का सफाया हो रहा है तो आप क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाना चाहिए? अरे आज जो सीएम है वो देवेंद्र जी है, वो रेगुलरली वहां पर जाते हैं। तो एक प्रधानमंत्री जी का ऐसा है कि ही कैनॉट गो टू एवरी प्लेस वेयर द डिस्टर्बेंस इज हैपनिंग, बट ही हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स लाइफ, और वो भली बात ही कर रहे हैं। आपने पूरे एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे यूएस ट्रेड वॉर हो,
चाहे कोई और हो। आपने देखा है कि जब वो मोदी जी अपने देश का हित है, ही इज रेडी टू बियर एनी कॉस्ट इन लाइफ। सो ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको ये कांग्रेस पार्टी से कोई एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं कि हम कब कहाँ जाए। राहुल गांधी बार बार मलेशिया जा रहे, थाईलैंड जा रहे, उसके बारे में क्या हम लोग क्यों कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी बाहर जाते हैं वो देश हित में जाते हैं, कोई छुट्टियां मनाने नहीं जाते। आज वो मणिपुर भी जा रहे हैं। मणिपुर इज अ वेरी वेरी sensitive region since last 2 years, and we are happy that peace has been established there, and we hope that after this society में कोई दरार नहीं रहेगी। we are everyone will live happily there. Sir, I don't think peace has been re-established, very frankly speaking. There's still a lot of work to be done. If you actually look at the enforcement agencies over there, the drug trade still continues. We still have to get rid of the Myanmar wing and the Cambodia wing and the Chinese wing. All these three are still functioning over there, but still the Prime Minister is going over there. Hats off to him, very good. I hope whatever has been done actually works, because the Prime Minister had very rightly not gone there for a long time, because it was not safe. Not just for the Prime Minister, it was not safe for the state. So there are certain things which can't be shared with everybody. So Manipur today is a huge drug hub. The poppy cultivation in Manipur is the third in the world after Colombia and Venezuela. So somehow the other, that thing was allowed to take over the entire place. So which is why. But in any event, good news for everybody as far as US and India is concerned. हमारे जो मेन नेगोशिएटर हैं वो जा रहे हैं, अभी US जाएंगे, वहाँ पे बातचीत होगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा सर। जो रोड़ा अटक रहा है सर प्रजापति साहब और समीर भागरे साहब, वो अटक रहा है सिर्फ एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, वेरी फ्रेंकली। अब वो चाह रहे हैं कि उनके जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर बिके हैं, और उस पर जो हम लोग जो टैरिफ लगा रहे हैं वो ना लगाए जाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट I suppose I'm reasonably certain they'll work out something. I'm sure it'll work out. I don't think there will be a major problem. Pradeep ji, you want to ask something? I think that's it. प्रजापति साहब आप कुछ बोलना चाहते थे, ये मणिपुर वाले में 2 लाइन समाप्त होने से पहले कुछ कहना चाहोगे आप प्रजापति साहब? प्रदीप जी, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत देर कर दी प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर जाने में। 2 साल हो गए, बताइए 2 साल में 20 देशों की यात्रा तो कराए, कम से कम 20 नहीं और ज्यादा देशों की यात्रा कराए। ऐसा लगता है मणिपुर जो है भारत से बहुत दूर है, बहुत दूर है, शायद ही कोई देश इतनी दूर हो। दूसरा मैं ये कह रहा था कि अभी मैं एक पत्रकार, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उनको सुन रहा था थोड़ी देर आज से गई, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जो चर्चा चल रही थी अखिलेश यादव की, आज भारत में अगर मोदी जी और अमित शाह सबसे ज्यादा व्यंग से डरते हैं तो हमारे नेता हैं माननीय अखिलेश यादव, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यंग करते हैं वो, और हंसते हुए व्यंग करते हैं जी, दुरुस्त और भाषा में करते हैं। और उस व्यंग से अमित शाह और जब वो बोल रहे होते हैं सदन में, तो प्रधानमंत्री जी तो मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन अमित शाह की जो चेहरे की है वो हवाइयां उड़ी रहती हैं। ये केवल इस बात का द्योतक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी आज भारत के बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, और निश्चित रूप से तीसरे नंबर की पार्टी तो बन ही चुके हैं। वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज पूरा देश इस चीज को देखता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, ये पूरा देश देख। Right, gentlemen, thank you very much. And Sameer Bhagre Sahab, at some point of time, we'll have a proper discussion on Manipur as to how it has become the center for the production of heroin. और वहाँ पर वो शान हिल्स में जो उनके कैरन रेबल्स हैं वो भी हैं, कचिन आर्मी भी उसमें इन्वॉल्व है, और कंबोडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है, और हमारे चाइनीज़ तो खैर हमारे बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं, हर जगह पे ही हैं वो तो I think because this has brought about one thing which I think everybody needs to be told about is this is not just a war between cookies and mitais. This is actually a war on drugs. जो war on drugs आप लोगों ने शुरू करी, उसको लेकर के ये सब कुछ हुआ है। अभी तक क्या था कि सर बस पीस हर एक को अपना अपना हिस्सा मिल रहा था। आप लोगों ने ड्रग्स के खिलाफ एक धावा बोल दिया,
अब वो क्या है कि वो कहते हैं ना पंजाबी में पूंडा दे खक्कर तुसी हाथ पाओगे तो फिर होएगा ही ना सर, बाहर निकलेंगे. इफ यू पुट योर हैंड इन अ हॉर्नेट्स नेस्ट, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. So that's what has happened. But I would say, as far as security forces are concerned, I'm sure Dr. Prajapati will not agree with me, but let me tell you this, they've done a wonderful job as far as Manipur is concerned. To pacify quite a lot of it, अभी भी जो remote hills हैं, जो म्यांमार के बिल्कुल साथ लग के हैं, और दूसरी तरफ चाइना के साथ जो लग के हैं, वहाँ पर अभी भी बहुत काम करना है सर. But let me tell you very frankly, we've done a wonderful job there. बहुत लोग मरे, मानता हूँ, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, मानता हूँ, लेकिन that drug empire has got a huge blow. We've struck a huge blow against drugs over there. Sir, heroin, we had become one of the largest producers of heroin in the world, मणिपुर में. ये लोगों को शायद मालूम नहीं है. In any event, thank you very much, gentlemen. और प्रजापति साहब, आपको नंबर दे देंगे समीर भाकरे साहब का, आप प्लीज उनको भेज दीजिए. समीर भाकरे इज अ वेरी सिंसियर मैन. समीर भाकरे जी बहुत सिंसियर आदमी है, और वो जरूर आपकी चीज जो है फॉरवर्ड जरूर करेंगे आगे. ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन. Thank you, sir. नमस्कार सर. नमस्कार. जय सिया राम, हर हर महादेव. थैंक यू. No, I don't know whether we have that footage. Do we have that footage of that lovely ice गणपति जो मैंने दिया था आज सुबह? वो है आप लोगों के पास के कल दिखाएंगे वो? Will somebody tell me please? वो बर्फ का बना हुआ गणपति, our soldiers have made it on the border. अगर हम लोगों के पास है तो जरा दिखा दें. It's really beautiful. अगर आज नहीं दिखा पाएंगे तो कल दिखा दीजिए, कोई बात नहीं. But it's really beautiful, Pradeep ji. Fantastic. It's on the border. Yes. It's really truly lovely. साइचन ग्लेशियर के आसपास गणपति के टाइम पे एक बर्फ का गणपति बनाया हुआ, बहुत 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 Wonderful. Look at the really and truly lovely. spirit of. And I must say, by the way, as far as UP is concerned, I wanted to tell them AK-203s, the latest batch has just gone. Latest batch of about 500 or so guns have just been received by the Indian Army. And by the 17th, as I said, the first batch of engines for the Tejas Mark 1 will arrive from the USA, and the Tejas itself will be delivered. Mark 1 will be delivered to the Indian Air Force in December. And a That'll be startling fantastic. revelation by the army chief. He said during Operation Sindoor, 400 scientists worked 24/7 without break. I mean, that's amazing. 400 scientists ISRO के वो लगातार काम कर रहा था Operation Sindoor. That's right. And 24 hours, my goodness, 24. The whole story is still to come out. 24/7 इस प्रकार से. So the whole story is still to come out. How Yes. we were able to block not just Chinese and Pakistani satellites and Turkish satellites, we were actually able to block American satellites as well. Because And as I've said always in international relations and during war, there is no friend or foe. If he's not with you, he's a foe. Let's be very clear, and has to be treated as to such. have departments like the ISRO and the scientists working 24/7. So you don't have only the army, the armed forces working out there. You got the entire backup backing you to see that you are protected from all sides. Pradeep ji, if you remember, we were the first channel actually to thank ISRO. सब लोग Yes, जब yes, बोल रहे थे, हम बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल। सबसे पहले बोला था कि इसमें इसरो के साइंटिस्ट जो हैं, हमारे वैज्ञानिक जो हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, उनका बहुत बड़ा हाथ है. उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है उनका. ये इसी चैनल पर बोला गया था. And I mean, इस प्रकार जब गैलेंट्री अवार्ड्स दे रहे हैं, हर प्रकार के अवार्ड्स दे रहे हैं, you cannot neglect this particular entire scientist, the group that worked out. That is probably something that is coming out during the Bofors. I mean, during the Kargil war. It was the Bofors gun. The Bofors guns. It was the artillery that caused the maximum damage to Pak positions, and the artillery men never got any awards. I mean, they didn't get any awards at all. It was always the other. So It was always the infantry. Yes. They were the guys who were there, and they were the guys who died and took bullets. Yes. So here, ISRO has done a fantastic work. It's there it is. Pradeep ji, watch that, Yes, watch that. yes. अरे वो गणपति देखिए साहब. Can we have it on full frame, please? वो full frame दिखाइए और पूरी footage जरा दिखाइए, please. उसकी पूरी footage दिखाइए. Can we have it on full frame, please? Full frame दिखाइए इसको. Do people don't understand or what? कि मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? दिखाइए. चलिए. This is really and truly lovely. Fantastic. This is beautiful. Wow. अरे साहब कमाल है. गणपति बप्पा. Ganesh ji has become a symbol of unity for the whole country. That's right. Absolutely lovely. This again is a symbol of unity. Really and truly lovely.
Fantastic, absolutely fantastic. Really, truly lovely. Look at that. Thank you, gentlemen. Thank you very much. And the modaks also, modaks. मोदक भी है वहाँ पर जी. कमाल है साहब, But कमाल. complete गणपति जो कहते हैं कि जिस प्रकार से होना चाहिए उस पूरे I, रिचुअलिज्म को पाना. we'll have to find out where the Maratha LI is stationed right now. I think these guys look as though they're from the Maratha LI. But we'll talk about a little bit more about this tomorrow. Thank you very much. Thank you. So Pradeepji, as far as Manipur is concerned, let's be very clear. Manipur had become a hub for producing heroin, and we had become the third largest producers of heroin in the world after Colombia and Venezuela. And the poppy cultivation is still going on over there in Manipur. Apparently the weather suits poppy cultivation. The golden triangle, that's what right. they call it. The So Thailand, all these Burma, guys were yes. picking that up from there and sending it down all over the place. क्योंकि हेरोइन की खपत हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं होती है. It is there in the Southeast Asian states and in Japan and of course in the United States of and America. this drugs was fetching them arms, and the kind of arms that were being used there. Fantastic. Is probably our armed forces never had that kind of arms that was being used. That's Automatic weapons. And to So it understand that took- it's place like northeast country where nobody thinks about will have such advanced weapon systems. That is. In fact, they were using drones. Manipur rebels were using drones. That's right, To they target were. positions. That's right, they were. So hats off to our armed forces, hats off to our paramilitary forces. It took 2.5 years, but they have kind of pacified them. However, some of them still remain. पूरी तरह नहीं हुआ है. मैं एक बार फिर warning दे देता हूँ आपको. Too early to celebrate. We haven't really finished them off as yet. But some sort of peace has been restored, especially between the Kukis and the Meetais. The Meetais are the plainsmen, Kukis are in the hills, and the Kukis were the ones who were controlling the entire drug trade. As a result of it, the Meetais were feeling kind of left out, and there was hell of a lot of money to be made, and so on and so forth. So, लेकिन प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक जो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई थी, they allowed this trade to go on. उनका ये था कि भी चलने दो, हमको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, आप भी खाओ, हम भी खाते हैं. ये था. Northeast was neglected, totally neglected. ये बीरेन When सिंह साहब development was concerned, where any kind of strategic talks for Indo-China border was concerned, it was totally neglected. उसको हाथ मत लगाइए, वहाँ हाथ लगाएंगे तो China will come in and various other. So Northeast railway trains नहीं थे. I meet a lot of people from That's the right, Northeast, absolutely. Northeast in Mumbai. They said to go to our area, to our homes in our native lands, it takes 4 to 5 days. It was terrible. 4 to 5 days. So कोई now, ट्रेन नहीं. तो अभी क्या हुआ है कि बीरेन सिंह साहब की सरकार आई, उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये ड्रग ट्रेड खत्म कीजिए, और उसके ऊपर क्या था कि वो रिजर्वेशन के ऊपर एक रूलिंग आ गई मणिपुर के हाई कोर्ट की. एक तो वो दैट वाज द ट्रिगर, और अभी क्या है कि हमारे आदरणीय सामान्य क्या नाम है इनका, नितिन गडकरी साहब, उन्होंने वहाँ पे सड़कें भी बना दी हैं, रेलवे ट्रैक्स भी बना दिए, और अश्विनी वैष्णव साहब ने वहाँ पे ट्रेन भी चला दी. और उसके बाद क्या हो गया है कि सब बहुत लोग जो वहाँ पर पहले थे उनकी बड़ी तकलीफ हो गई है. तो ये तकलीफ तो सहनी एंड पड़ेगी. मोदी जी का पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी जो शुरू कर दिया उन्होंने. जी. सो मैसिव इन्वेस्टमेंट हैज टेकन प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट. I hope that continues, क्योंकि क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में चाइनीज जो है वो थोड़ा बहुत अंदर आ गए हैं. मैंने अब ये सुना है कि उनको बाहर कर दिया गया परसों हमारी फोर्सेस ने, ये अंदर की खबर है, चाइनीज को बाय द वे आलू के पराठे खिला करके उनको बाहर भेजा गया है. बट दे लव आलू का पराठा बाय द वे, ये भी बता दूं आपको. आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज नॉट अ जोक, डोंट टेक दिस एज अ जोक, दिस इज रियल. द चाइनीज लव आवर आलू का पराठा. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको. आलू का पराठा मक्खन डाल करके और उसके साथ रायता. एंड द चाइनीज फोर्सेज ओवर देयर आर हाफ स्टार्व्ड बाय द वे, ये भी आपको बता दूं. उनके पास खाना नहीं है. वो हमारे प्रदीप जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नागालैंड में जो हमारी मेस है, माउंटेन डिवीजन की जो मेस है, वो वहां पर आते हैं खाना खाने के लिए. तो दे हैव जस्ट बीन टोल्ड कि भैया जरा पीछे हो जाओ, बेकार में नहीं तो मारपीट हो जाएगी. जो गलवान वैली में हमारे तो 20 गए, आपको मालूम है आपके कितने गए. टास विच इज दैट रशियन न्यूज एजेंसी, उन्होंने कहा कि 65 के 70 चाइनीज फौजी मरे हैं वहां पे. यस. तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, मतलब आप जरा पीछे चले जाइए. बड़े प्यार से उनको समझा दिया गया है, वो पीछे चले भी गए हैं. So as a result of which now there is some kind of stability in that area, all thanks to that handshake between Modi ji and Xi Jinping. So I hope that continues. And I think before the end of the month, there is a possibility that we will have some clarity, complete clarity rather, on the US tariffs on Indian goods. And the US tariffs, and Prime Minister Modi today also said that India and Mauritius should take care that the Indian Ocean is free for all kind of movements and free for all kinds of trades. So it has to be clean,
in all sense, That's right. clean and free in all sense. Now, That is the at Mauritian. same time, That is the yes. Mauritian Prime Minister. That's And right. at the same time, there we are even talking, negotiating, we are negotiating very hard. We are putting our positions very, very in the front that these are the things that we would like to, and it's happening. और सबसे बड़ी बात मैं एक बार फिर यहाँ पे कहता हूँ, भले ही लोग कहें कि भाई ये गोदी मीडिया हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, वो आप लोगों की मर्जी, अगर आप ये कहना चाहें तो आई थिंक मिस्टर मोदी हैज बिहेव्ड इन एन इम्पेकेबल मैनर विद मिस्टर ट्रम्प. ही हैज नॉट रिएक्टेड टू ऑल द नास्टी प्रोवोकेशंस ऑफ मिस्टर ट्रम्प. चुपचाप ही हैज मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड साइलेंस एंड स्ट्रेंथ. जब ट्रम्प साहब ने तारीफ करी है तब मोदी साहब ने रेसिप्रोकेट किया है कि हाँ जी And his बड़ी अच्छी defiance बात has है. been applauded all across the world. ऑल ओवर द वर्ल्ड. All the top leaders say that we should emulate Prime Minister Modi, the way he has stood and stood firm, not to succumb. That's right. And once again, before we go, happy birthday again to Mohan Bhagwat ji. मोहन भागवत जी को एक बार फिर जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. मोहन भागवत जी को बहुत बहुत मुबारक आज के जन्मदिन की. आई थिंक ही इज द फर्स्ट आरएसएस चीफ एक्चुअली टू टॉक अबाउट हाउ मुस्लिम्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड विल रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. उनका दोबारा जो भाषण आया कल का, उसमें उन्होंने क्या कहा, इस्लाम यहाँ पर इतने साल पहले आया और इस्लाम आगे भी यहाँ पर रहेगा. इस्लाम यहाँ भारत से जाने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की यह प्रवृत्ति नहीं है. हिंदुओं में जो भी यहाँ पर आया है उसको पनाह मिली है, भले वो ईसाई हों, इफ यू रिमेंबर सेंट थॉमस, भले वो मुसलमान हों. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की फैमिली यहाँ पर आई सबसे पहले, और सबसे पहली मस्जिद, प्रदीप जी, पहली सबसे पहली मस्जिद अगर दुनिया में कहीं बनी तो वो केरल में बनी, सबसे पहली फर्स्ट मॉस्क. Yeah, yes. पारसी भी यहाँ पर आए Even the church. जी, द चर्च सेंट थॉमस, ही बॉट इन द फर्स्ट चर्च. एंड देन ऑफ कोर्स ऑल द जूस, जितने यहूदी थे हमारे, अब तो बहुत कम रह गए, सब लोग इजराइल चले गए, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं. और पारसी यहाँ पर आए, बाकी जितने भी लोग यहाँ पर आए सब लोगों को पनाह मिली. Probably India is the only country in the world where all faiths, they live in harmony, and faith within faiths, they also live in harmony. और जहाँ तक And they practice true freedom as per the constitution. एंड बिफोर आई गो आई मस्ट से दिस, हिंदुस्तान में तकरीबन 20 से 24 करोड़ मुसलमान हैं. 20 से 24 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं होते. इट इज़ नॉट अ माइनॉरिटी, एट बेस्ट इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, हिंदुस्तान अकेला एक ऐसा मुल्क है जहां पर इस्लाम के सारे 72 फिरके, उनको पूरी आज़ादी है, अपने तरीके से आप इबादत कीजिए. कोई आपके मस्जिद के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करता, कोई आकर के आपको मारता नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है. भले आप जो मर्जी हों, आप शिया हो, सुन्नी हो, और शियाओं में भी अलग अलग फिरके हैं, सुन्नियों में भी अलग अलग हैं, बाकी सब हैं. इट इज़ ओनली इन इंडिया दैट ऑल मुस्लिम्स हैव द मैक्सिमम freedom. Let's be very clear. Now, this is something that everybody must appreciate. Well, that's it. That's all that we've got for you in tonight's show. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भैया कर दें. Do subscribe to the channel. एक बार फिर आपको बोल रहे हैं. To the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest The growing fastest channel. growing channel of the nation. Nation Now. Nation Now. और इट इज़ योर चैनल, और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सच दिखाने की कोशिश करते हैं, भले किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे. और that's it. That's just about it in tonight's show. We'll of course be back tomorrow. In the meantime, do send in your comments. We'll try and read out as many as possible. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.